Okay, we have discussed about the effect of pressure and temperature in previous video. When we increase the temperature, solid is converted into liquid, liquid is converted into gas, and vice versa. When we decrease the temperature, gas is converted into liquid, liquid is converted into solid. हमने प्रेशर का भी देखा था इफेक्ट. यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. जब हम ज्यादा प्रेशर करेंगे, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा. Liquefaction of gas देखा था हमने. When we increase the pressure and decrease the temperature, gas is converted into liquid. This is known as liquefaction of gas. और हमने पढ़ा था dry ice, most important, जो एग्जाम में आता है जनरली. When we increase the pressure, decrease the temperature, carbon dioxide is directly converted into solid form from gaseous state into solid state, and this solid state of carbon dioxide is known as dry ice. Okay. नाउ टुडे ये जो प्रोसेस है इसका कुछ नाम दिया गया है. सॉलिड से गैस होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है. तो उस प्रोसेस का सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, इसके नाम दे देंगे. तो यदि हम बोलेंगे मेल्ट कर रहा है, कोई चीज मेल्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं आइस मेल्ट कर रहा है, आइसक्रीम मेल्ट कर रहा है, तो आप समझेंगे सॉलिड लिक्विड बन रहा है. हम इससे बोलेंगे सॉलिड इज कन्वर्टेड, लुक लुक लुक, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. अब आइसक्रीम आप खा रहे हैं, बोलते हैं देखो देखो सॉलिड कन्वर्टेड लिक्विड, तो बड़ा अजीब लगता है. तो बोलेंगे ओके दिस इज मेल्टिंग. द process of converting of solid into liquid is known as melting. So we are going this type of terminology in this video. Now, what are the terms? Solid, sublimation, melting, freezing, condensation, vaporization. So all these terms, so vaporization, condensation, freezing, melting, sublimation, and evaporation, all these terms are related to the conversion of matter from one state to other state. So we'll discuss now. What is vaporization? जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर गायब हो जाता है. This process is known as vaporization. The process of change of liquid into gas at its boiling point is called vaporization. पहले बॉयल करेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट करता है. The temperature at which a liquid boils is known as its boiling point. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, आप हीट करना स्टार्ट करते हैं और उसमें आप टेम्परेचर रखें तो अब बढ़ेगा. जब 100 डिग्री आएगा तो रुक जाएगा, वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू gaseous form, vapor. Water boils at 100 degrees Celsius and 100 degrees Celsius is called the boiling point of water. The temperature at which a liquid boils is called boiling point. Different liquids boils at different temperatures, so we can say different liquids have different boiling point. Condensation, अब देखो boiling और ये जो है vaporization is the conversion of liquid into gas and condensation is the conversion of gas into liquid. उसका opposite, the change of gas into liquid is called condensation. ये winter के समय में आप देखते होंगे tiny droplets of water on leaves. Water when rises, water vapor ऊपर जाता है, then this water vapor gaseous form is converted into liquid form and returns to the earth. Okay, the change of vapor into water because of decrease, so change of vapor, or you can say change of gas into liquid is known as condensation. Here, the change of vapor into water because of decrease in temperature is called condensation. So condensation is the reverse process of vaporization. When the temperature of vapor decreases, it changes into water. This process is known as condensation. Okay, तो हमने पढ़ा जब लिक्विड गैस बनता है वेपोराइजेशन, जब गैस लिक्विड बनता है कंडेंसेशन. अब जब लिक्विड सॉलिड बनता है फ्रीजिंग. सिंपल, आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लिक्विड को और फ्रीज हो जाता है. समटाइम्स वी पुट वाटर और भूल जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो पूरा जम जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द फ्रीजिंग. ओके, the change of liquid into solid because of decrease in temperature is called freezing. तो समटाइम बोतल का सिप ऐसा होता है, आप पानी भरे हैं, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, ओके, टेम्परेचर काफी कम है तो पूरा पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज फ्रीजिंग. ये क्या है? दिस इज मेल्टिंग. आइसक्रीम इज मेल्टिंग, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. सो वाटर चेंजेस इनटू आइस because of decrease in temperature here. In other words, water freezes into ice because of decrease in temperature. Water freezes at 0 degree Celsius. जब आप पानी को ठंडा करना स्टार्ट करेंगे, जो वो 0 डिग्री हो जाएगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है.
मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड बनेगा मेल्टिंग, लिक्विड सॉलिड बनेगा फ्रीजिंग। वेरी सिंपल वर्ड। The change of solid into liquid due to increase in temperature is known as melting. Ice, which is a solid, melts, that is, changes into water at 0 degrees Celsius. So water changes into ice at 0 degrees Celsius, water changes into vapor at 100 degrees Celsius. Latent heat. Oh, these are very important terms. Latent heat, आप शायद नाम नहीं सुने होंगे। Latent का मतलब होता है छुपा हुआ, जो पता ही नहीं चलता। हीट का मतलब हीट, टेम्परेचर जो बढ़ाते हैं। So latent heat is the heat released and absorbed by a body during the process without change in temperature of the system. जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो होता क्या है कि जब 100 डिग्री चला, जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे तो बढ़ेगा 20, 30, 50, 60, 99, 100, 100 पे रुक जाएगा। कितना भी हीट करेंगे 100 पे रुका हुआ रहेगा। तो बाकी हीट कहाँ गया? तो बाकी हीट गया वाटर को वेपर बनाने में। तो ये जो जितना हीट खर्चा होता है, वी कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट। सो दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस, बियॉन्ड 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। सो जितना हीट हमने और एक्स्ट्रा दिया, और जो हीट वाटर को लिक्विड बनाने, सॉरी वाटर लिक्विड को वेपर बनाने में खर्चा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है? तो वह जा कहीं नहीं रहा है, वह वाटर को वेपर बना रहा है, हीट वहां जा रहा है। तो वो जो छुपा हुआ हीट है, जो हमें बताता नहीं है कहाँ गया टेम्परेचर, क्योंकि हम पता कैसे करते हैं? थर्मोमीटर से पता करते हैं, तो रुक जाता है 100 पे। सो वही हीट क्या कहलाता है? लेटेंट हीट, and that is known as latent heat of vaporization. Yes, यहाँ बढ़ गए हैं। So latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat required to convert 1 kg of liquid to vapor or gas. 1 kg liquid को वेपर बनाने में जितना हीट एनर्जी लगता है, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। सिमिलरली, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, टाइप ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। जब 1 kg सॉलिड है, उसको मेल्ट करने के लिए जितना हीट हमें देना पड़ता है, वह हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है और मेल्टिंग कहलाता है। और फ्रीजिंग, क्योंकि मेल्टिंग जिस पर उसी टेम्परेचर पर फ्रीजिंग होता है। So when solid changes into liquid, the heat required changing the state without rising temperature is called latent heat of fusion. The quantity of heat required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature is called latent heat of fusion. The heat required is measured in joules. हीट को जूल में मेजर किया जाता है। सो लेटेंट हीट कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid is known as latent heat of fusion. The amount of heat required to convert 1 kg of liquid into its vapor is known as latent heat of vaporization. एक और वर्ड है sublimation. इसको लिक्विड से बहुत ही डर लगता है। अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है। यहाँ का सॉलिड बोलेगा नहीं, मैं लिक्विड नहीं बनूंगा, मैं सीधा गैस बनूंगा। इसको लिक्विड से काफी एलर्जी है। सो द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेज इनटू वेपर, सॉलिड चेंजेज इनटू वेपर मतलब सॉलिड चेंजेज इनटू गैस डायरेक्टली without changing into liquid is called sublimation. The process of conversion of solid into vapor without changes into, sorry, we can say without changing into liquid is called sublimation. We have seen the naphthalene balls. This is डालते हैं हम लोग कबर्ड में डालते हैं, प्लस को जो इंसेक्ट से बचाने के लिए डालते हैं, कुछ दिनों के बाद छोटा हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर्स। तो वहां लिक्विड नहीं बनता है, सीधा हो गया हवा में चला जाता है, नेफ्थलीन बॉल्स। सिमिलरली कैम्फोर्ड को जो आप ओपन छोड़ देंगे तो वह सीधा हवा में चला जाएगा, मेल्ट नहीं करेगा, पिघल के नहीं आपको डिस्क को या जहां पर रखे हैं जिसमें, वहां पर उसको ऐसा वेट नहीं करता है। सो दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। Ammonium chloride also, iodine, dry ice, carbon dioxide. This is also directly converted into gas. When camphor is heated, it changes into vapor without changing into liquid. When the vapor of camphor is cooled, it changes into solid without changing into liquid.
ठीक है, नेपथलीन बल्ब हम डिस्कस कर लिया। नेपथलीन बल्ब्स आर यूज्ड इन टॉयलेट्स आल्सो एज डिसइंफेक्टेंट एंड एयर फ्रेशनर्स। ठीक है, नाउ एक नया टर्म है एवापोरेशन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है because this is also the process of conversion of liquid into vapor, liquid into gas। ये भी लिक्विड इनटू गैस में कन्वर्सन का तरीका है। अब लिक्विड इनटू गैस बनने वाले को हम तो क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। एवापोरेशन कहां से आ गया? ओके, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, ये जो वेटेड कपड़े हैं इसको यहाँ क्यों रखा गया आप लोग समझ सकते हैं। इसको ड्राई करने के लिए रखा गया। और हमने अभी देखा इसमें क्या वाटर था, कुछ देर के बाद वाटर गायब हो जाता है, सूख जाता है, इसमें से वाटर भाग जाता है। लेकिन वाटर को कन्वर्सन किस में होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। अभी हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस उसके बाद लेटेंट हीट, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ये गायब हो जाता है। वो ये वाटर, ये आप ग्लास में रख दीजिए या डिश में रख दीजिए, 2 दिन के बाद वो गायब हो जाता है, कम हो जाता है क्वांटिटी। ओशंस गर्मी का समय आता है, ड्राई हो जाता है, तालाब सूख जाते हैं, रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स ड्राई हो जाते हैं। कहाँ वाटर जाता है? कोई बॉयल नहीं हो रहा है वहां, फिर भी वाटर गायब हो रहा है। ये जो है, फिर भी वाटर बॉयल नहीं हो रहा है, फिर भी डिसअपीयर हो रहा है, फिर भी वाटर गैस में कन्वर्ट होता है। तो बिना बॉयल किए कन्वर्जन को हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। सो सिंपल, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही वह कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एवापोरेशन। ये बहुत ही जरूरी है। एवापोरेशन नहीं होगा तो वी कांट इमेजिन द लाइफ, क्योंकि रेन नहीं, बारिश नहीं होगा। ठीक है, evaporation, the change of liquid into vapor without reaching at its boiling point is called evaporation। evaporation takes place only at the surface of liquid। अब बोले जब यह दोनों में डिफरेंस क्या है? जब वाटर बॉयल करता है तो आप देखते होंगे नीचे का वाटर ऊपर आता है, ऊपर का वाटर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, पूरे बल्क माने पूरे में होता है। लेकिन ये एवापोरेशन होता है ऑन द सरफेस ओनली। जब आप ग्लास में वाटर को रखते हैं तो ग्लास का जो ऊपर का ओपन सरफेस है, जहां जो एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस है, वहीं पर एवापोरेशन होगा। सो इट विल टेक मेनी डेज टू ड्राई, टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर फ्रॉम द ग्लास। लेकिन वही उसी क्वांटिटी को जब आप डिश में डाल दें, फैला दें पूरा, उसमें 1 मिलीमीटर का रहने हाइट वाटर, वही सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ग्लास ही है, ग्लास को भी फैला दिया आपने, फर्श पर फ्लोर पर फैला दिया, सरफेस बढ़ गया, आपने नीचे ऑब्जर्व कर गया, चलो उसमें नहीं फैला, डिश में डाल दो। बोले अब तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डिश में डालेंगे, फिर वो कुछ देर के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा, शाम तक डिसअपियर हो जाएगा, सुबह डालेंगे 2 घंटे में डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ग्लास में रखेंगे तो डिसअपियर होने में टाइम लगता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो सरफेस होता है वाटर का, उतना ही सरफेस में एवापोरेशन होता है। So this is the surface phenomena, we can say. Evaporation takes place only at the surface of liquid, while vaporization takes place on the whole mass of body. Evaporation takes place even at room temperature also. Simple, room temperature में evaporation होता है, कपड़े सूखते हैं ना। Evaporation speeds up with rising temperature. Of course, temperature बढ़ता है तो evaporation fast होता है। When water or other liquid is left in open, gradually its volume decreases. If you left some water in a pot in open, after 2 or 3 days water disappears. If the water left in garden or in an open balcony, it disappears quickly than kept in a room. This happens because of evaporation. और ये होता कैसे है? वो चलो हमने अभी देखा था, वाटर को बॉयल करते हैं, प्रीवियस वीडियोज में वाटर को बॉयल करते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे का साथ छोड़ देता है, फोर्स प्रोटेक्शन कम हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर तो कोई एनर्जी उसको नहीं दे रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? ओके, molecules at the surface of water when exposed to some temperature, their kinetic energy increases। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता कैसे है? हवा में से कुछ एनर्जी उसको मिल जाता है, उसको एक्स्ट्रा, नीचे वाले को एनर्जी नहीं मिलता है, जो एयर के मोलिकुल्स के कांटेक्ट में है, पार्टिकल्स के कांटेक्ट में, उसको एनर्जी मिल जाता है एयर से, थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ी सी गर्मी। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दोज मोलिकुल्स बिकम एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अटैक्स। उसको एनर्जी मिल जाता है, उसके बाजू वाला जो मोलिकुल्स है
वाटर का, लिक्विड का, वो जो खींचने वाली फोर्स होती है उससे ज्यादा एनर्जी उसमें आ जाता है और उस फोर्स को ब्रेक कर देता है. आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, they escape in the air in the form of vapor. The surface molecule also gets some of the required kinetic energy from their neighboring molecules. जब उसको एयर से थोड़ा सा एनर्जी मिलता है तो वह आजू बाजू से भी ले लेता है थोड़ा सा एनर्जी, और उसका एनर्जी कम हो जाता है उसके नेबरिंग मोलिकुल्स का. जब एनर्जी कम होने का मतलब हीट किसी को दे दिया तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा. रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो जो बचा हुआ है, इसलिए जब अर्दन पॉट में रखते हैं वाटर को अपने आप ठंडा हो जाता है. होता क्या है कि अर्दन पॉट से वाटर एवोपरेट होता है. एवोपरेशन में क्या होता है, जो बाहर निकला वह कुछ हीट टेम्परेचर लेकर के बाहर निकला, हीट लेकर के बाहर निकला, तो बाकी बच्चा जो मोलिकुल्स है वाटर के उसका हीट तो कम हो जाएगा ना, तो दे बिकम कूल, दे बिकम कूल, सॉरी. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवोपरेशन. और फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, ये बड़ा टर्म्स आप लोग सुने होंगे, बड़ा परेशान करता होगा समटाइम. फैक्टर्स क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर. फैक्टर्स बोलेंगे 25 का फैक्टर, 5 into 5 प्राइम फैक्टराइजेशन. बट हियर फैक्टर्स आर नथिंग. फैक्टर्स हियर फैक्टर्स आर नॉट दोज फैक्टर्स. हियर समथिंग मीनिंग. क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्टिविटी है जो एवोपरेशन में हेल्प करता है. जैसे अब फूड बनाते हैं, लंच, डिनर, क्या क्या चीजें हैं जो उसको डिलीशियस बनाता है. बहुत सारे स्पाइसेस होंगे. तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो एवोपरेशन में हेल्प करता है. टेम्परेचर हेल्प करता है. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर evaporation become fast. This means that their evaporation increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature. This means rate of evaporation is directly proportional to the temperature. So temperature, इसलिए in summer clothes dry quickly as compared to the winter, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है. प्रेशर, एवोपरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन कम हो जाता है, मोलिकुल्स को डिस्टेंस नहीं मिलता, एनर्जी नहीं, तो कहां से भागेगा. ओके, एंड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर. दिस मींस द रेट ऑफ एवोपरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. प्रेशर बढ़ाएंगे एवोपरेशन कम होगा, प्रेशर कम करेंगे एवोपरेशन ज्यादा होगा. सरफेस एरिया, evaporation increases with increase in surface area and decreases with decrease in surface area. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. इसलिए हम क्लॉथ्स को पूरा फैला देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एवोपरेशन फास्ट हो, कपड़े जल्दी सूखे. यदि आप वेट क्लॉथ्स को पूरा फैलाएंगे नहीं तो सरफेस एरिया फटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो उसका रेट ऑफ एवोपरेशन भी काफी कम है. जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है एयर में, एयर उतना ही मिल जाएगा. तो बहुत इट विल टेक मेनी लॉन्गर टाइम टू ड्राई अप. ओके, water kept in a plate evaporates quickly. plate, अब टी, कॉफी बहुत सारे लोग डिश में लेते हैं, कप में नहीं. कप में जो सरफेस होता है ओपन सरफेस काफी कम होता है. इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिकम कूल. बट व्हेन वी pour in dish तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है. This happens because in plate more surface area of water exposes to atmosphere which receives more heat and evaporates quickly. While in a glass, a glass or cup, less surface area of water exposed to atmosphere. Because of that, less molecules of water receives heat from the atmosphere and evaporates. Slowly compared to the water exposed with large surface area. Okay, evaporate slowly कहने का मतलब यदि सरफेस एरिया कम होगा, एवोपरेशन काफी स्लो होगा, ठीक है. Hence rate of evaporation increases with decrease in surface area and decreases with increase in surface area. Humidity in air. Okay, rainy season में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है. What is the reason is that humidity is more in air, so it takes longer time to dry. It means evaporation is slow. and humidity ज्यादा है, evaporation slow हो रहा है, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है. Because that our clothes get dried up quickly in summer and winter than in rainy season. Because in rainy season there is more water vapor present in air, which decrease the water holding capacity of atmosphere. Atmosphere में water holding capacity होता है, यानी कि जब बाहर वेपर निकला तो जगह चाहिए ना उसको, तो एयर में पहले से ही वेपर रहता है, तो जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए नहीं होता है. So we can say evaporation decreases with increase in humidity and increases with decrease in humidity in air.
Okay, this means rate of evaporation is indirectly proportional, okay, to humidity present in air. Wind speed, okay. विंटर के समय में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, दिन में रात को हम लोग क्या करते हैं, फैन चला देते हैं, विंड स्पीड बढ़ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। यानी कि जब विंड हवा बढ़े, ओके, विंड स्पीड ज्यादा होगा, evaporation fast होगा। evaporation increases with increase in wind speed and decreases with decrease in wind speed. This means rate of evaporation is directly proportional to the speed of wind. A speedy wind propelled away some of the particles of water with it, which speeds up the rate of evaporation. मतलब खींच के ले जाता है। That's why a speedy wind speeds up rate of evaporation. We see the wet cloth is dried up quickly in a windy day since the wind speeds up rate of evaporation. One important term, diffusion. ये यहाँ पर कुछ डाई मोलिकुल्स, कलर कलर हम डालते हैं पानी में, पूरा रेड कलर का थोड़ा सा ये डालते हैं, few drops of red color and whole water becomes red, पूरा फैल जाता है। ठीक है, ये फैलने के लिए कौन कहता है उसको, क्यों फैल जाता है, ये उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपने आप मिलने की प्रॉपर्टी है, हम लोग भूल गए हैं, वैसे प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स के बीच का एक प्रॉपर्टी नेचर ने दिया है, वो सब आपस में मिल जाता है। ठीक है, the phenomenon of mixing of particles of different substances together is known as diffusion. Diffusion takes place because of the movement of particles of matter. Diffusion is a natural process. The mixing of different gases in air is a natural process that takes place continuously. Diffusion takes place from higher concentration to lower concentration. Diffusion takes place in solid, liquid and gas. और दो चार फेनोमेना देख लेते हैं, एक दो। डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस मोस्ट रैपिडली इन गैसेस। गैस में डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है। कोई सैनिटाइजर लगाया, कोई अच्छा सा सेंटेड सैनिटाइजर, वी कैन फील द स्मेल ऑफ सैनिटाइजर बिकॉज वेपर कमिंग आउट सैनिटाइजर कम्स टू अस, वो मिक्स हो गया एयर पार्टिकल के साथ। ठीक है, स्मोक निकलता है बाहर, फैक्ट्रीज के समय देखेंगे जहां से निकलता है वहां पर काफी ज्यादा दिखला, व्हाइट कलर का, कुछ एक बार डिसअपियर हो जाता है, दैट इज मिक्स्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। Particles of gas have more kinetic energy, due to that they move with high speed. Because of the movement of particles with high speed, gas diffuses most rapidly. Example, mixing of gases in air. Smoke coming out of factories is seen only near the mouth of chimneys. After rising high, it mixes up with air and vanishes out. This happens because of diffusion of gases. Diffusion in liquid. The rate of diffusion is less in liquid than that of gases. The particles of liquid have enough movement because of kinetic energy for diffusion. Diffusion जितना चाहिए उतना energy उसके पास में होता है. When two liquids are kept together, they are mixed because of the diffusion. When salt solution is kept in water, this makes whole the solution salty. सॉल्ट सोल्यूशन है, एक ग्लास में पहले से सॉल्ट सोल्यूशन मिला लीजिए, एक ग्लास में वाटर है जिसमें सॉल्ट नहीं मिला हुआ है, दोनों को मिक्स करेंगे, पूरा वाटर सॉल्ट हो जाएगा। सॉल्ट पार्टिकल्स मिक्स विथ वाटर पार्टिकल्स। Okay, diffusion in solid takes place with slowest rate. In the case of solids, the rate of diffusion is almost negligible. Since the particles of solid have lowest kinetic energy, so they do not move. Hence, diffusion takes a long time in the case of solid. लेकिन sometime we observed that the marks of chalk on the blackboard or green board could not be wiped out easily after a long time. This happens because of the diffusion of particles of chalks with the particles of blackboard or green board, and marks of chalk could not be wiped out. Alloys are mixture of two or more than two metals. Alloys are possible to get prepared because of diffusion of solid into solid, otherwise हम बना ही नहीं सकते थे। Bronze, steel, brass, all are examples of alloy. Temperature and rate of diffusion. अब temperature का कुछ effect होता है क्या diffusion? Of course, the rate of diffusion increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature. Simple example है, जब कभी टी, अभी जो सिस्टम है बाहर से हम लेते हैं सुगर क्यूब, जब आप बाहर से डालते हैं तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर कम होता है, जब आप कप में डाल दिए कॉफी को
या टी को टेम्परेचर कम हो जाए मिक्स। लेकिन यदि आप ड्यूरिंग द बॉइलिंग पोजीशन जब आप डालते हैं तो पता नहीं तो बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि काफी अच्छे ढंग से डिफ्यूजन हो गया, यानी टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए टेम्परेचर अच्छे ढंग से घुल गया, डिफ्यूजन हो गया। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ decrease in temperature. Diffusion takes place because of the movement of particles of matter. टेम्परेचर बढ़ने से मूवमेंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी which increases the speed of movement of particles of matter. The increase in the speed of the movement increases the rate of diffusion. काइनेटिक एनर्जी बार बार आ रहा है, आप लोगों का एक है चैप्टर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोशन के चलते जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मूवमेंट के चलते जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब हम हीट टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, इसमें मोशन ज्यादा होता है, सो तेजी के साथ डिफ्यूजन होता है। We do not get the smell of cold food from a distance. ठंडा फूड रखा हुआ है उसका हमें जो स्मेल नहीं मिलता है, while we get the smell of hot food from a distance because smell coming out from the cold food in the form of gas do not have enough kinetic energy to cover more distance. हमारे पास आते आते बीच में ही गायब हो जाता है। But when food is hot, the vapor coming out from it moves more rapidly, तेजी के साथ मूव करता है because more kinetic energy and reaches to us if we are at a distance from it. This shows that temperature increases the rate of diffusion. टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है। ओके, सम डिफ्यूजन इन ओके सम फेनोमेना जो हमें आसपास देखते हैं, जो हम लोग आसपास देखते हैं। ओके, डिफ्यूजन अभी हमने पढ़ा, व्हाई कैन वी स्मेल हॉट फूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, अभी हमने आंसर पढ़ा, इसका हम नहीं पढ़ेंगे। द वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द फूड रीचेज टू अस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन एयर एंड वी गेट द स्मेल ऑफ फूड। क्यों? रीजन हमने अभी देखा। वी गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस, बर्निंग इंसेंस खुशबू प्रेजेंट इन इट। ओके, स्टिक सिटिंग फार फ्रॉम इट, काफी दूर होता है फिर भी हमें पता चल जाता है। व्हेन इंसेंस स्टिक इज बर्न, द इंसेंस प्रेजेंट इन इट, जो उसमें प्रेजेंट होता है खुशबू, वेपोराइजेज, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट। द वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द इंसेंस स्टिक mixes with air, reaches to us. In similar way, we sense the good or bad smell from a distance. When sugar is added in water, it is mixed because of the diffusion. जब sugar डालते हैं water में ये mix हो जाता है because of diffusion. The particles of sugar collide with particles of water because of their continuous movement and finally they are mixed together because of diffusion. collide मतलब टकराता है और आप दोस्ती कर लेता है, mix हो जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोका कोला, स्प्राइट और क्या क्या है देखिए, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैस इन वाटर। ओके, वी नोटिस अ हिस साउंड, जब आप हिला के खोलते हैं बाहर निकल आता है। व्हेन द कैप ऑफ बोतल ऑफ ए कार्बोनेटेड ड्रिंक इज ओपन, द हिस साउंड कम्स बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड गैस कमिंग आउट ऑफ वाटर। सोडा, soft drinks, etc. are the carbonated drinks and prepared mainly because of the diffusion of carbon dioxide in water. Aquatic animals, जिंदा ही नहीं रहता यदि इसमें वाटर में गैस नहीं मिला होता, ऑक्सीजन नहीं मिला होता, तो ये सारे जो आप फिश देख रहे हैं और अदर एक्वाटिक एनिमल्स कांट सर्वाइव बिकॉज दे हैव टू रिस्पायर। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी में जब ऑक्सीजन मिलेगा एंड ऑक्सीजन इज गैस। सो aquatic animals take dissolved oxygen in water while breathing. Aquatic plants synthesize their food under the water because of the dissolved carbon dioxide in water. These gases dissolve in water because of the diffusion. Aquatic animals take dissolved oxygen in water while breathing. Okay, so this is the third video and the last video of chapter 1, matter in our surroundings. If you have any doubts, you can write. And don't forget to subscribe the channel. Thank you. Take care. May God bless you.